Hi friends, today I'll discuss the meaning of accounting, what is financial accounting and what are the functions of financial accounting. First of all, I'll discuss the meaning of accounting. Accounting means the collection, recording, classification and presentation of the financial data for the benefit of internal parties as well as the external parties like shareholders, creditors, bankers and government. अकाउंटिंग का मतलब है डेटा को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, देन उसको क्लासीफाई करना एंड लास्ट स्टेप इज़ प्रेजेंट करना फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट एंड आउटसाइड पार्टीज. So question arises, what is included in outside agencies? Outside agencies include shareholders, creditors, bankers and government. Every party is interested to know the profit and loss of the business. Shareholders are interested because they want to get the maximum dividend on their investment. क्रेडिटर्स को इसलिए इंटरेस्ट होता है बिकॉज दे वांट टू नो कि कहीं कंपनी जो है आने वाले टाइम में बैंकरप्ट ना हो जाए. और बैंकर्स को इसलिए इंटरेस्ट होता है बिकॉज दे वांट टू नो कि कंपनी जो है टाइम पे अपने लोन की अमाउंट रीपे करे. And government is also interested to know the profit and loss position of the company because the government wants to impose the more and more amount of the taxes, and the government want to frame the policies according to the earnings of the business. So there are some definitions which has given regarding the concept of accounting. First definition has been given by the Eric Kohlen. Eric Kohlen के accordingly accounting का मतलब है उसको analyze करना, classify करना, record करना फॉर द बेनिफिट ऑफ किस के बेनिफिट के लिए, ताकि जो एंटरप्राइज़ है अपनी ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली मैनर में रिकॉर्ड कर सके और अपनी रिजल्ट्स को जो है टाइमली रिपोर्ट कर सके. सिमिलरली एक और डेफिनेशन दी हुई है बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. इनके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग का मतलब क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको समराइज़ करना और उसको लास्टली इंटरप्रेट करना. So there are three types of the accounting: financial accounting, cost accounting and management accounting. Next I am going to discuss about the meaning of financial accounting. Financial accounting का मतलब क्या है? It is art and science of recording and classifying the business transactions and preparing the summaries in the end of the year. समरीज इसलिए प्रिपेयर की जाती हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकें कि बिज़नेस की जो पोजीशन है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है. ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न. ये सारी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड की जाती है अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है टू द शेयर होल्डर्स, अगेन टू द क्रेडिटर्स, बैंकर्स एंड द गवर्नमेंट. There are two principal statements which is prepared in the financial accounting, that is income and expenditure statement, that is known as profit and loss account, and another statement which is prepared that is known as balance sheet. In income and expenditure account we record the expenses and on the another side we record the incomes. Similarly in the balance sheet on one side we record the liabilities and on the other side we record the assets. Next I am going to discuss the functions of financial accounting. There are some important functions of the financial accounting which plays major role. First of all, the first and foremost function is recording of the information. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना. इंफॉर्मेशन इसलिए रिकॉर्ड की जाती है बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस. अकाउंटिंग क्या करता है? एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है कि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को अगर रिकॉर्ड करेंगे वी कैन ईजिली चेक आर इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम. इंफॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड की जाती है? इन दी जर्नल एंड इन अदर सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स का मतलब है जो हमें हेल्प करती हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए. इट कैन बी परचेज बुक और इट कैन बी सेल्स बुक, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक, रिटर्न्स इनवर्ड बुक. परचेजेस बुक है, सपोज परचेजेस बुक में हम परचेजेस के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे. इफ़ देयर इज़ ए सेल्स बुक वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द सेल्स. रिटर्न्स आउटवर्ड मीन्स कि हमने अपनी सेल्स में से जो है कितना रिटर्न किया है. रिटर्न्स इनवर्ड मीन्स हाउ मच द कस्टमर्स आर रिटर्निंग टू अस. सो नेक्स्ट फंक्शन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा. क्लासिफिकेशन का मतलब है जो सिमिलर डेटा है उसको हम एक ही नेचर की डेटा को एक ही जगह पे पुट ऑन करना. दिस इज़ डन इन द बुक कॉल्ड द लेजर. जैसे कि हमारी एक
तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम एक ही हेड में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं सैलरीज़ की, रेंट की, इंटरेस्ट की, एडवर्टीज़मेंट की, तो हम इन सबको एक ही हेड के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है मेकिंग समरीज़। अनदर फंक्शन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, समरीज़ बनाना। समरीज़ का मतलब है कि उसको जो भी हमने इतना बड़ा डेटा बनाया है उसको कन्वर्ट करना इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Profit and loss is prepared from the various revenues items for a given period and balance sheet item हमें क्या बताता है, it is a summary of assets and liabilities। हम सारी transactions को form करते हैं in the form of profit and loss account and in the form of balance sheet so that it can be understandable to the management as well as to the outside parties। Another important function is dealing with the financial transactions। Dealing with the financial transactions tell us that we only record the financial transactions that can be recorded in the economic terms। We do not record the transactions which cannot be recorded in the economic terms। Like जैसे हमने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। अगर हम कोई भी ऐसी टर्म को रिकॉर्ड करना चाहते हैं लाइक बिहेवियर कैसा है मैनेजर का, कोई झगड़ा हो गया है, किसी वर्कर की प्रमोशन हो रही है, वी कैन नॉट रिकॉर्ड सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस इन आवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट मेजर फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी हम इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, जो भी हम डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने कंक्लूज़न के ऊपर पहुंच सकें। इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन से क्या पता चलता है कि जो भी डेटा एनालाइज किया उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको हम लिख रहे हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी ने कितना लॉस इनकर किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए इंटरप्रेट की जाती है ताकि जो क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर सकें और जान सकें वेयर द कंपनी इज स्टैंडिंग नाउ। नेक्स्ट another imperative function of the financial accounting is the communicating the results को communicate किया जाता है। communicate कैसे किया जाता है, profitability and financial position of the business is communicated through the profit and loss account and balance sheet। जो भी हमने सारा डेटा लेजर में, जर्नल में रिकॉर्ड किया है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में बनाते हैं, देन उसको कम्युनिकेट किया जाता है ताकि जो बाहर वाली पार्टीज़ हैं दे कैन टेक देयर डिसीजंस वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। Last but not least, the major function of the financial accounting is making information more reliable। जो हमारी information है that should be reliable, that should be consistent। ये reliable कैसे होगी, अगर हमारे जो standards हैं that should remain the consistent। ये नहीं है कि हमारे जो एक कंपनी है स्टैंडर्ड्स को चेंज करी जा रही है विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। लाइक एक साल में कंपनी के स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं और अगले साल में कंपनी कुछ और स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर रही है, देन इट कैन नॉट प्रोवाइड द रिलायबल इंफॉर्मेशन। लाइक अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, अगर डेप्रिसिएशन का मेथड जो है कंपनी कुछ और अभी लगा रही है, स्ट्रेट लाइन लगा रही है, अगले साल डिमिनिशिंग बैलेंस लगा रही है, तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं इट विल नॉट बी दी सिमिलर रिजल्ट्स के लिए कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी शुड ऑलवेज यूज़ द सिमिलर टाइप ऑफ द मेथड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।